Hi guys, welcome to the second knowledge slash growth session of Visa Hindu. How are you guys doing, first of all? Amazing. Great. क्या नया किया, कुछ skills वगैरह कुछ नया सीख रहे हो या फिर अभी भी freshers after effect चल रहा है? How's it going? Got into Italy's largest biotech incubator called Nucleate Italy. So that was something I did in the recent Bad, bad. और कुछ interesting? विनाश क्या चल रहा है product का? सोशल मीडिया बिल्ड करते Social media कितने followers हुए हैं कितनी team में? हैं 35 ये बंदा इसमें क्या मजदूर है क्या टीम है टीम है तेरी The ability to make people work for free is important. मजाक नहीं होता जेन्युइन कह रहा हूँ अगर बहुत सारे तुम देखोगे बिजनेसेस देखोगे कैसे करते हैं एंड अप ही करते हैं अपने लोएस्ट स्टार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ को उनको प्रॉफिट्स पाते हैं फिर करते हैं स्टोरी बिल्डिंग करते हैं क्या फ्री में तुम्हारे से कराएंगे फ्री में काम स्पेशल हो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी इंटर्नशिप होगी कराएंगे फ्री में काम कराएंगे कैसे नहीं करना उसके लिए होता है वहाँ पर अटैच वैल्यू है सर देयर आर ऑल्सो बिजनेसेस देयर इज दिस गाय इन यूएस who raised 100 million just by getting Nigerians work in technology for $1 an hour. ठीक है वरना टिपिकली $15 an hour इज अ मिनिमम वेज इन यूएस 12 to 15 और उसने $1 an hour में उसने एम्प्लॉयज पकड़े लोगों को लगाया रेज $100 million just because of that concept of sorts. But हाँ effectively यही होगा you figure out that a lot of businesses are okay the lowest part of employer क्या हो रहा है and they will do extra. So anyway, the resource repository. How many people have you guys? Like how many people present here have gone to the resource repository? Pakka. Yeah. Anyone else? कुछ देखा, कुछ नया समझा, समझा नहीं पता. So why we built this resource repository is because a few of us noticed that a lot of student entrepreneurs, founders in general, or people who are quote unquote smart, use very similar resources. मतलब तुम अगर देखोगे ना एक स्मार्ट आदमी बड़े लोग सारे एक ही जगह से अपनी इंफॉर्मेशन ला रहे हैं तो इट कुड बी लाइक सिलिकॉन वैली का कुछ डेटा होगा ठीक है उसको किसी ने रिपोर्ट में कंपाइल करके वायरल कर दिया ठीक है सम वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म कंपाइल द डेटा क्रिएटेड अ रिपोर्ट एंड वो चीज़ पूरी वायरल हो गई इवन विद विद इन लाइक द फाउंडर कम्युनिटी देयर आर फ्यू फाउंडर्स लाइक पॉल ग्राम हो गया पीटर हील हो गए ठीक है लाइक दीज आर सिलिकॉन वैली फाउंडर्स a lot of entrepreneurs a majority of entrepreneurs have been inspired by them and इनके ना कुछ mental models हैं कुछ अपनी खुद की thesis होती है कुछ philosophy वगैरह होती है and what I have seen very consistently across the board even within the folks who have raised big rounds or people who I consider smart in general have had a pattern ठीक है a very clear pattern of getting inspired by someone that is doing that has done or doing some crazy shit and then just going down that rabbit hole of understanding and like reiterating कि उसको क्या पता है क्या नहीं पता है क्या पसंद है क्या नहीं पसंद so this resource repository is one of our efforts our attempts to bring that culture to you guys because if you observe your like social media feeds वगैरह like YouTube वगैरह अगर देखते होंगे most likely it's full of entertainment and stuff बट अगेन इन माई एक्सपीरियंस जब मैंने अपने दोस्तों की फीड्स वगैरह ऐसे देखी लाइक कैजुअली ऐसे कॉन्वर्सेशन में दिखाई पड़ी यू फिगर्ड आउट लाइक अ लॉट ऑफ अस हैव वेरी सिमिलर सोशल मीडिया फीड्स एज वेल क्योंकि कुकीज़ होती हैं आई यू गाइस अवेयर ऑफ द कांसेप्ट ऑफ कॉल्ड कुकीज़ एंड स्टफ कुकीज़ पता है लाइक एडवर्टाइजिंग डेटा जो होता है वो तुम्हें कैसे टारगेट करता है गूगल का एडसेंस वगैरह हमारा एल्गोरिथम कैसे बनता है रिकमेंडेशंस कैसे आते हैं तो smart people have tailored the algorithm and tailored the content around them so that it creates a positive feedback loop. You see one thing, you get inspired, you see another thing, you get even more inspired. And somewhere along those inspirational lines, you figure, कि अच्छा, let's start a company.
company or let's join the company. ठीक है? So again, resource repository, insane stuff. ठीक है? मतलब इसमें best है. मतलब this is not even I would say कि अच्छा content है, नहीं. This is the best content available on earth. Hundreds of founders, thousands of founders across Y Combinator, across India का entrepreneurial network, across US Silicon Valley have used these resources to build their characteristics and skill sets up. And we want you guys to have very direct access to it because the first step towards creating entrepreneurs or smart people in general is solving for the information asymmetry. Information asymmetry basically means that X person knows something or a group of individuals know something but you don't, and that is the primary mode that they have over you. ठीक है? Mode मतलब advantage for the time being. So again, this is very cool stuff if you actually go and look through it. हमने last year इसको थोड़ा half compile करके release किया था while we were doing senior code का induction. A few people watched it, majority of people didn't. This time it will be mandatory for you guys, for your respective verticals, to just have a baseline understanding of what you are supposed to do and what you are supposed to know. मतलब we don't want core positions जिसमें लोग भाई डायरेक्टर ऑफ XYZ लेके बैठे हैं पर कुछ ही नहीं आता उसके बाद. ठीक है? मतलब फाइनेंस अगर है तो फिर तुम्हें आना चाहिए, वेंचर कैपिटल आना चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए. ठीक है? ऑल द ऑपरेशंस, एनीथिंग, डिजाइन, एवरीथिंग यू नीड टू नो. देयर आर सर्टेन फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट वी वांट टू मेंटेन. And this is one of the reasons why we are, very focused and very hyped about this. Okay. Next is College Survival Guide. This is again a compilation of insights, my insights, primarily my insights because I'm a third-year guy who has seen some things, and insights of a lot of senior board members across Hindu colleges. So people from Enactus have seen this, like ex-senior, like BAV, people from YTDC have seen this, they have vetted this. A few very respectable entrepreneurs in my circuit have been through this and understood कि क्या है, क्या नहीं. And everyone, like a lot of people that I respect have vetted this College Survival Guide. अभी के लिए this is recent specific, we aren't releasing it to public because maybe सिर्फ 2 subsections है. We plan on adding a couple of more and then we might make it a collaborative talk with other societies as well, providing a level of competency is maintained and providing you guys to take some initiative, right? So core philosophy यार ये सब ना पढ़ लेना. ठीक है? मतलब ये ऐसे नहीं है कि जो किताब का फर्स्ट पेज जो फर्स्ट पन्ना होता है उसमें से एक्नॉलेजमेंट वगैरह लिखी होती है, नहीं है. दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ कल्चर. यू नीड अ फिलॉसफी. ठीक है? यू नीड अ सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स फॉर एवरीवन टू फॉलो सो दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. And again, across cultures or clans or tribes or whatever you call it, be it from BITS Villani, be it from IITs, be it from MIT, Stanford, the Ivy League institutions, you figure out that people aren't necessarily insanely smart. There are smart people, yes, but most people are like you and me. Normal people who work very hard but have access to the right resources. Okay? So again, these survival guides are a way for us to share our insights for the seniors to just tell you एक जगह लिखकर कि भाई ये चलता है, ये नहीं चलता. ठीक है? इसमें और डीप डाउन करते हैं, डीप डाइव करते हैं. नेटवर्किंग, a lot of you guys were like नेटवर्किंग नहीं करनी आती भाई, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फट जाती है. This is the guide. ठीक है? If you go through it, you'll figure out that we've dropped every kind of insight inside. ये मतलब क्या चलता है, क्या नहीं चलता, how not to be stupid. ठीक है? How to approach a person, where to approach a person. It also includes a LinkedIn guide because we figured out, like for me, LinkedIn has been like an insanely productive platform. Like a lot of opportunities I've got through primarily because I was very active on LinkedIn, and I would even call myself like very active. I'm just fairly active because I have friends who are like influencers with 60,000 followers and stuff, and the opportunities they get are also pretty insane. मतलब मार्केटिंग वगैरह अगर तुम्हें लिंक्डइन में करनी है कर सकते हो. इट्स अ प्रीटी गुड प्लेटफॉर्म. सो अगेन, लाइक व्हाट इज नेटवर्किंग, हाउ टू नेटवर्क, वेयर टू नेटवर्क, ट्विटर हो गया, कॉन्फ्रेंसेज हो गया. आई ऑल्सो ड्रॉप इन एन इनसाइट अबाउट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज व्हिच गॉट मी अ स्कॉलरशिप टू US. And honestly, like a US average trip will cost you around 4.5 lakhs or something. To me, including all visa plus traveling to Chennai and stuff, it costed like 80,000 max. Baki stuff was covered by the organization.
So getting access to these insane opportunities. Now मैंने कोई ऐसे कोई बहुत ही बड़े तीर खंबे नहीं मारे हैं, मतलब कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने, बट the idea was that I knew how to play my cards right, कि भाई इस पे फोकस करो, नीश ऑर्गेनाइजेशन है, नीश कम्युनिटी है, किसी और को चाहे चमके ना चमके, मेरे को 3-4 चीज़ें इनके लिए करके देनी है, they will be happy, they will invite me for sure, ठीक है, as simple as that. So this is not like, for me it was marketing, for you it can be technology, it can be anything. Even in Actis का जो World Cup होता है, that is a pretty big deal, ठीक है, मतलब that also sponsors you जहाँ पे भी वो हो रहा होता है. I'm not sure कि अब क्या details है, but like just for the folks who are in Actis की World Cup is a big deal अगर तुम जाओ तो an international exposure by the way is worth it, ठीक है, मतलब ऐसे तो में लगेगा कि क्या हो गया बाद में चलता है, ये नहीं. If you go as a student, it will help you with the visa, it will help you just building a profile and it has a good factor attached to it. तो वो भी मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया. I hope you guys go through it, but I can't again put a gun to your head and expect you to cut. I just expect you guys to go through it by default. ठीक है? And again, grabbing internships as well. So first of all, networking is primary. अब internship कैसे grab करनी है is important because for a lot of you guys, the primary way to gain exposure or gain experience will come through internships. Projects, society projects, ठीक है? जो अगर मैंने जितने भी अभी तक interviews दिए हैं, everyone has asked me about my internship experience. Nobody cared about the projects. ठीक है? At least in my experience, a lot of people do talk about their projects experience as well. But if you have very good internships, nobody will care about your projects like society projects and stuff. हाँ, experience अच्छा हो सकता है, but then I have my apprehensions regarding it. That is one of the reasons why projects wasn't our core focus. उसके बारे में बता दीजिए. But हाँ, internships का कंपनी कैसे जज करनी है, ठीक है? How not to grab a bad internship, ठीक है? मतलब कुछ ना certain frameworks and standards होते हैं. तो वैसे LinkedIn में जाओगे, you'll see a lot of people, founder वगैरह लिख रखा होगा प्रोफाइल में. उनको कुछ पता नहीं है, तो उनके साथ जाके काम करोगे, 2 महीने तुम्हारे फुल बर्बाद होंगे, एक पैसा नहीं लेंगे, ठीक है? तो अपने आप को एक बेसलाइन लेवल अंडरस्टैंडिंग में लेकर आओ, एक स्किल सेट बिल्ड करो, देन अप्लाई टू क्वालिटी इंटर्नशिप्स. कैसे जज करना है, इट्स अगेन रिटन ओवर देयर. वी हैव आल्सो क्रिएटेड दिस लिटिल ब्लैकलिस्ट, इंटर्नशिप ब्लैकलिस्ट, मतलब वार्निंग है, ब्लैकलिस्ट भी नहीं है कि भाई अगर करना, मतलब अगर ट्राई कर सकते हो तो अवॉइड करो इन सबके साथ इंटर्न करना. Again, that's present in the guide. You are free to go through it, and I expect you guys to drop in reviews about the entire motion document today. मतलब मैंने पहले भी काफी बच्चों को बोला था, but unfortunately I didn't receive that kind of response. I expect you guys to drop in recommendations, reviews, feedback, constructive criticism, whatever by tonight. मतलब चाहिए मेरे को, ठीक है? क्योंकि this thing is supposed to go out pandy. And इसके बेसिस पे हम 3-4 चीज़ें लाइक प्लान है हमारे कि भाई दूसरी सोसाइटीज़ को लपेटेंगे, like other e-cells from lesser known colleges. उनके लिए ये चीज़ मतलब गोल्ड है, मतलब उनको मिलेगा ही नहीं है सब कहीं. And I've seen series of smart folks from T2 colleges, T3 colleges, even if they are grinding equally hard, the quality is just, the difference in quality is just due to the information that they are getting and the information that we have access to. So this also solves for that. तो करना, ठीक है? Important है करना. ठीक है. नेक्स्ट इज ईसल मार्केटप्लेस. आज लॉन्च कर रहे हैं, मतलब द प्रोजेक्ट रिलीज कर रहे हैं. व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज वन वी फिगर्ड आउट दैट वी नीड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लाइक इन Actis does, ठीक है? मतलब उनके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स चलते हैं एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट, राइट? कि हमारा एक चल रहा है, ऐड करना है नहीं करना दैट इज डिफरेंट, बट एक कंसिस्टेंटली चल रहा है, सीधी सेल के लिए है, तो हम भी लॉन्च कर रहे हैं. ईसल मार्केटप्लेस इज अ वे टू for our attempt to create like a 0 to 1 experience for you. 0 to 1 is a term, okay? 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100 is a term that is used in the startup space. 0 to 1 is the primary, the one you're starting from scratch to getting somewhere. And in Actis aside, a lot of e-cells already do this. मतलब उनके long term projects चल रहे हैं, e-cell LSR के already चल रहे हैं, बस हमारे नहीं चल रहे for some reason, तो हम निकाल देते हैं. ये it's a long term project, ठीक है? Generate revenue, be useful, ठीक है? 0 to 1 journey of setting up a website with a storefront, payment gateways, ठीक है? Effectively handling 2 kinds of businesses at once. Why a marketplace? Because a marketplace is effectively handling two kinds of businesses at once, ठीक है? तुम एक साइड में तुम कस्टमर को भी कुछ करना चाहते हो, like you want to make the buyers happy as well, you want to make sellers happy as well,
ठीक है, these two are the primary challenges of a marketplace, and a marketplace is a chicken and egg problem. ठीक है, मतलब chicken and egg problem is that you need one for the other to exist. So you have to decide कि अच्छा तुम are you solving for the chicken first or are you solving for the egg first? कि तुम्हें buyer side पहले solve करना है या seller side पहले solve करना है. Ideally you solve for the side that is in the easiest access for you. So it could be anything like that is supposed like you guys are supposed to decide कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है, consider this the minimum viable product. This is an asset light model. Asset light model means that we don't own an inventory of our own. मतलब हमारे खुद का कोई प्रोडक्ट है. ठीक है, call us like Meesho of Delhi University or Amazon of Delhi University. हमारा खुद का कुछ नहीं है. We are just giving you an interface. We are giving you the technology. We are giving you the tools. जिसको आना है अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स अपनी खुद की फैमिली की जिसकी भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स जस्ट अ वेरी हाइपर लोकल हाइपर लोकल मार्केट प्लेस. ये लेकर चलो अभी के लिए हिंदू में ही रखते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद हिंदू. अगर अच्छा चलता है बहुत अच्छा चलता है सो लेट्स जस्ट एक्सपैंड टू अदर कॉलेजेस आज तक. तो अभी के लिए आई फील कि मतलब कुछ बच्चे हैं जिनके खुद के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं. व्हाई नॉट सेल इट ओवर हियर? ठीक है, व्हाई कांट वी कन्विंस आवर फ्रेंड्स आर अदर सोसाइटीज हु हैव देयर ओन प्रोडक्ट लाइनअप्स टू सेल इट ओवर हियर बिकॉज़ वी आर गिविंग यू द टेक्नोलॉजी. नाम भी अभी इसका चेंज कर देना. ईसेल मार्केट प्लेस विल हैव ऐसा ऐसा कनोटेशन कि अच्छा ईसेल है तो कुछ बदल देना. मतलब इट्स अ फ्रेमवर्क दैट वी आर गिविंग यू. The project members will be able to tailor the framework according to your own needs and understanding. ठीक है, hyperlocally हो गया. Think of services, products that can be onboarded. हाँ, अब सोचो, चलो एक एक्टिविटी दे रहा है तो जल्दी सोचो ऐसा क्या स्टफ है जो तुम एक मार्केट प्लेस पे डाल सकते हो. वी आर इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बोथ. तो कुछ भी हो सकता है बट सोचो लाइक एनीथिंग एल्स इफ यू हैव इन माइंड. Candles of aesthetics. Like there's a marketplace or there's a trend on Instagram or between the Gen Zs that they are tend to buy stuff that are quote unquote aesthetic. So candles are the word which we can actually sell. In a very ideal case, in a very ideal case, you guys, मतलब we are able to scale this इतना कि if you are starting a consumer brand, तुम्हारे पास ऑडियंस होगी मतलब बाय डिफॉल्ट होगी. तो अगर इसने ये आइडिया बोला ये चलता है जेन्युइनली चलता है. एंड आई पर्सनली नो पीपल हु आर मिंटिंग लाइक 50-60,000 per month just selling those small little jewelry pieces and stuff and तो क्या कहते हैं लाइक समझ गया मैं क्या कहता हूँ. स्मॉल जूलरी क्यूट स्टफ बेचे कमा रहे छाप रहे उसको भी छाप रहे. एंड इट्स वेरी सिंपल बिजनेस. इट्स नॉट लाइक कॉम्प्लिकेटेड राइट. तो कर लो ना. मतलब अगर कमाई हो रही है 20-30 हज़ार चलो 60 तक नहीं पहुँचोगे 10 तक नहीं पहुँचोगे 10 कम थोड़ी ना बहुत होते हैं 10,000. लाइक एवरेज लाइक पॉकेट मनी इन माई रिसर्च व्हिच आई फिगर्ड आउट इज लाइक 5,000-6,000 रुपीज पर स्टूडेंट. तो 10,000 इज लाइक डबल और 2.5-2.3 है तो कर लो. सो दिस इज दैट. एनी मोर आइडियाज यू गाइस हैव? गिग शुरू कर दिया बेसिकली कि ये गिग इंटरफेस अलग से बना. सो इंटरेस्टिंग है तो करो. लग रहा है कुछ चमक आ रही है. डू यू थिंक इट्स इंटरेस्टिंग इनफ? Also अगर डिलीवरी फैसिलिटी प्रोजेक्ट्स की तो अगर सपोज जो प्रोडक्ट है इस सर्विस की डिलीवरी के लिए स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं. यूजुअली कम्यूट करते रहते हैं कॉलेज. तभी प्राइमरीली वी वांट टू बी एसेट लाइट एंड सेकंड वी वांट टू बी हाइपर लोकल. बिकॉज अगर डिलीवरी हुई जैसे कॉलेज टू कॉलेज है तो यार एक दिन कॉलेज आके एक दूसरे से वो बांट दो. तो दैट इज वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन. प्लस जो इसको हैंडल कर रहा होगा वो मैनेज करेगा ना कि कौन SKU मतलब कौन अपनी शक्ल को ऑनबोर्ड कर रहा है अपनी सर्विस ऑनबोर्ड कर रहा है. तो वेटिंग इनहेरेंटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ इतना ऑपरेशनल पेन तो बनेगी कि भाई हमें जाके शिप प्रॉफिट के पास बोलना पड़ रहा है कि अच्छा नहीं 200-300 रुपये लेके यहाँ से यहाँ डिलीवर कर दो. दैट विल बी अ पेन. बट अगर इतना रख लो इसको एंड इफ यू देयर आर लाइक प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड इन दिस इटसेल्फ. मतलब तुम उसको व्हाट्सएप चैट बॉट से इंटीग्रेट कर सकते हो. तुम उसको इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो.
ठीक है, इंस्टाग्राम पे देयर आर अ लॉट ऑफ थ्रिफ्ट स्टोर्स आर एक्टिव, आर यू गाइस अवेयर? थ्रिफ्ट स्टोर्स भाई इतना चलते हैं भाई, 4-4 हज़ार में बेच रहे होते हैं कपड़े को, ठीक है। एंड थ्रिफ्ट भी चलो ठीक है, देयर इज आल्सो आई डोंट नो किसके साथ डिस्कस कर रहा था, बट पुराने कपड़ों को अपसाइकल करके भी लोग बेच रहे हैं भाई, थोड़ा वो सब चेंज कर दिया, उसके पैटर्न मार दिए, चीज़ें बेच रहे हैं। सो है मतलब मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज एज अ स्टूडेंट है, बस थोड़ा मेहनत करें। This is the project 1. If you have any more questions, just let's move to the next slide. No more questions? Or we like where exactly are we to scaling the project? Like we know we have to go from 0 to 1, right? But do we have all the resources we need to actually go from 0 to 1 for the product? हाँ, क्या रिसोर्स है? What resources? Digital infrastructure. So हो जाएगा क्या, कितना 4 दिन का काम। अगर स्क्रैच से भी करो तो हफ्ते भर में वेबसाइट रेडी हो जाएगी। अगर तुम्हें कुछ ही नहीं आता, तुमने कभी लिंक्स हाथ भी नहीं लगाया, तुमने कभी टेक हाथ नहीं लगाया, तब भी हो जाएगा। हफ्ते भर में काम है, मतलब वेरी इजी टू सेट इट अप। तो ऐसे कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इशू तो नहीं आना चाहिए, देख लेंगे अगर आएगा तो कर लेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं। तो देयर इज दैट डिजिटल मार्केटप्लेस ये रही। सेकेंड इज द बराबरी प्रोजेक्ट। दिस इज अगेन आवर अटेम्प्ट टू क्रिएट सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी लास्ट टाइम भी किया था, ये वाला भी करके देखते हैं। दिस इज अ वेरी smaller version of what we did last time. So it includes a research report, it includes a task force, ठीक है। 1 month I think कितना चाहिए, हमारी कितना चाहिए, 1 month ही है ना। हाँ, 1 month का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट है, पूरी रिसर्च रिपोर्ट कंपाइल करना है और एक क्रैश कोर्स क्रिएट करना है। कोर्स क्रिएशन इंक्लूड्स HTML एंड स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल वगैरह। तो एसेंशियली होपफुली तुम लोग अगर खुद एक्सेल वगैरह कर रहे हो, HTML वगैरह सीखना है, तो फिर while you are doing it also teach it, ठीक है। तो मतलब it will create a better learning experience for you as well and it will actually be useful because इसको रिकॉर्ड करके हम एक कोर्स सा बना देंगे and then we'll ship it to the client. 1 month long project, plain and simple. And again, like every project, everything that we call project is CV vetable. मतलब अगर तुम्हें CV में कुछ डालना है, since I'm very sure कि तुम्हारे CV में कुछ नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें कर दो, ठीक है। It's a very straightforward. Any doubts on this? Any doubts or questions? So we have a research report on a segment. Is it like a statistic or the ना वो वाला बात that अभी आ रहा है, हाँ मतलब कर रहे हैं, पर कोविड का बाद में थोड़ा सेटअप करते हैं। बट हाँ, इसमें कोई वो NGO है यार, नॉर्मल सा। हाँ, एजुकेशन से होता है, एडटेक है बेसिकली, एडटेक/NGO, नॉन प्रॉफिट। तो उनके साथ है, कोलैबोरेशन कर मतलब हो जाएगा। अभी और भी है वैसे, एक और था, नेक्स्ट इज योर मेंटरशिप समथिंग, इसको भी डिटेल में लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्वेंशनली स्मार्ट, मतलब लोग तुम्हें कहते होंगे कि you are smart or you made it to Hindu, so they presume that you are smart. The thing is that if you go to a school or if you go to a tutorial like a tuition service or whatever, there is this sort of a mysticism around high achievers and overachievers, which is basically you guys. Even if you are अभी 10, for 99% of the population, तुम्हें बहुत ही मेजर फोड़ है, ठीक है। मतलब तुमने ऐसा कुछ कर दिया है जो कोई नहीं कर पाया, तुम कॉलेज में आ गए, तुम्हारे CVT में XYZ नंबर आ गए, तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी काम करती है, तुम्हारा स्कूल तुमसे बहुत खुश होगा, ठीक है, तुम्हें बुला रहा होगा, एलुमनाई के नाम पे कुछ ना कुछ करवा रहा होगा, ठीक है, अवार्ड वगैरह दे देगा, कुछ कर देगा, ठीक है। बट द थिंग इज दैट दिस इंडस्ट्री एज अ होल, लाइक इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू smartness or insecurity related to marks is a huge industry. Why I call it insecurity is because insecurity के नाम पर ही all the coaching centers run, all the edtechs run, all the college counselors run. एक और insight करते हैं. So when I was in UC Berkeley, I met this guy. He said, अब ये ना बहुत extreme example है, but मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे लोगों को लगता है कि US institutions के लोग बहुत एकदम crazy smart लोग होते हैं, जिनने बहुत अगेन
से ही फोड़ा होता है, हाँ काफ़ी उन्हें फोड़ा होता है, बट द थिंग इज दैट गाय पेड अराउंड 12 lakhs पर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज 8th grade to 12th grade, ठीक है। 12 लाख दे रहा है कॉलेज काउंसलर्स को who are building their profile, मतलब building his profile so that he can get into UC Berkeley। मतलब जाने से पहले ही he has spent like कितना 60 lakhs 70 lakhs on building his profile, ठीक है। ये तो मतलब मेरे तो खाली हो जाएंगे ये घर में अगर ये कर दिया मैंने। एंड ऑनेस्टली आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ कि हाँ ठीक है मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी वो, बट देन द रियलिटी इज कि इट्स अ लॉट ऑफ प्रिविलेज एंड ऑल्सो इफ इट्स प्रिविलेज इन्वॉल्व देयर आर अ लॉट ऑफ हाई टिकट क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये अगेन दिस वाज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, बट इवन इफ यू हाउ मेनी गाइस ओवर हियर हैव रेफर्ड टू लाइक कॉलेज काउंसलर्स वगैरह, या फिर जब तुम स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे थे तो किसी काउंसलर वगैरह से बात हुई ना? नोबडी। हाँ, तो होता क्या है कि टिपिकली दीज करियर काउंसलर्स दे चार्ज एनीवेयर फ्रॉम 2000 to 10,000 a decent career counselor. I have seen people charge like 25,000 from students जिनको उनको बस गाइड करना है टू गेट इनटू डी। गाइड इज हाँ CUT में ये है, आप ये कर लो, आप ये कर लो। CUT नहीं था हमारे टाइम पे, बोर्ड था, तो बोर्ड में ये है, रिजल्ट किया, पेपर कर लो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, 30 क्वेश्चन पेपर बिफोर यू अटेम्प्ट द पेपर वगैरह वगैरह। एंड उसके लिए वो एक सेशन के लिए वो 2,000 3,000 4,000 चार्ज कर रहे हैं। मतलब कुछ तुम्हें कुछ अलग लग रहा है ऐसे, मतलब ये तो तुम लोग कर ही लोगे, इज इट हार्ड, बट इज इट इज बिग मनी, ठीक है, इट इज बिग मनी। एंड हमारे पास एक क्लियर डेल्टा है कि तुम्हारी ऑलरेडी एक ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश हो गई है। वंस यू एंटर्ड इनटू यू ऑलरेडी हैव अ ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश। भाई तुमने टियर 1 टीम क्रैक किया है, तुमने टियर 1 इंस्टीट्यूशन से इको बीकॉम स्टैट्स मैथ्स जो भी है सब किया, ठीक है, साइंसेस ले लो, हर चीज़ की वैल्यू है। लोग देखते हैं, लोग एस्पिरेशनल होते हैं, पीपल वांट टू बी लाइक यू इवन इफ यू डोंट फील लाइक इट। तो इट इज दिस इज आवर सॉर्ट ऑफ एन इनिशिएटिव टू यू नो demystify overachievers, college toppers, college in general, preparation, CUET, ठीक है, how to go about things, how to navigate, ठीक है। तो this is a simple mentorship platform. How we imagine it is, तुम अपने आप को तुमने ऑनबोर्ड किया, you guys are the product, ठीक है। तुमने अपने आप को ऑनबोर्ड किया, तुमने अपनी एक प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल में तुमने लिखा कि यार आई एम दिस, मैंने यहाँ से एजुकेशन करी है, मेरा लाइक छोटा सा एक मेमो टाइप का बना दिया अपने बारे में। एंड अ पर्सन हु रिलेट्स टू योर प्रोफाइल दे कैन शेड्यूल अ स्लॉट विद यू कि अच्छा नहीं आई एम गिविंग यू, एंड 2,000-3,000 नहीं लेंगे बाद में, विल जस्ट टेक लाइक $200 मैक्स, 200-300 मैक्स। एंड तुमने उनको बुलाया, उसमें प्लेटफॉर्म पे बुलाया, यू कॉल इन पीपल, they book a session with you with the senior they find relatable, and then you take a session with them, take 2 sessions with them, 3 sessions, whatever, okay, 200 जितना तुम्हें करना है करो। You are like ideally you can set your own price. If you are like a very insane person, you might be able to command a higher value for yourself and your time. If you are like someone who wants to if you are someone who wants to do it for free, let's say, तो फिर तुम फ्री में कर दो। तो ये है एक कॉन्सेप्ट, ये है मेंटरशिप प्लेटफॉर्म का। द लार्जर विजन अगेन इज कि तुमने अगर देखा होगा ना कि लोगों को लगता है हिंदुआइट्स का थोड़ा वीकी चलता है, मतलब डम है, ये है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये नहीं। तो आइडिया इज कि बच्चों को ना स्कूल से पकड़ना, assuming you get a lot of smart people from school itself who have already talked to a lot of Hinduites, smart Hinduites again, who are conversational, who know how to talk, who have help। तुम एक तरीके से एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर रहे हो कि अच्छा हाँ हमारे यहाँ उस हिंदू वाले बच्चे से बात हुई थी, वो बच्चा स्मार्ट था, उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है। आई थिंक द कॉलेज इन जनरल इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो फिलॉसफी तो चलो ये है कि भाई ऐसा नेटवर्किंग इफेक्ट क्रिएट करो कि तुम्हारी पर्सनल ब्रांड वैल्यू कॉलेज की ब्रांड वैल्यू को साथ में ऊपर लेकर जा सको। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बताओ कोई डाउट वगैरह कुछ है तो? कोई डाउट? कोई तो होगा यार, मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ तो आने ही चाहिए। इट्स वेरी प्लेन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। यू हैव एनी क्वेश्चन? रोमन, हाउ इज इट पॉसिबल? स्टार्ट करने के लिए
विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग योर ओन पर्सनल प्रोफाइल्स, पर्सनल लैंडिंग पेजेस. ठीक है, हो सकता है कि हम एक दो सर्विसेज हैं जैसे कैलेंडरी ऑल्टरनेटिव, हाँ टॉपमेट करके, हो सकता है उसको इंटीग्रेट करें कि एक वेबसाइट हमने अपनी वेबसाइट में हमारा सेक्शन एक करके डाल दिया, हमारे बुक के टॉपमेट लिंक्स अलॉन्ग विद योर लेट्स से योर लिटिल लाइफ स्टोरी ऑफ सॉन्ग्स. ठीक है, सो द थिंग इज हिंदू में ना डाइवर्सिटी बहुत, मतलब डीओ इन जनरल हैज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. तो टैपिंग करना मतलब इफ यू लाइक a person who has done his education from a tier 2 high school, मतलब कोई tier 2 city से किया है, and that guy can't simply talk to a person or be along the same lines of a person जिसने किसी like Delhi किसी metropolitan से अपनी education करी है. भाई experiences बहुत different है, socio economic background बहुत different है, तो बंदा कभी relate नहीं मार पाएगा. And this will be counterproductive because then that person will think कि अच्छा यार ये लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं, ये लोग तो कॉन्फिडेंट भी बहुत है, ये तो रिच बैकग्राउंड से आते हैं, मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, आई विल स्टॉप हसलिंग और स्टॉप दैट. तो दैट इज अगेन लाइक एज अ सेफगार्ड कि भाई सिमिलर बैकग्राउंड वाले बच्चे सिमिलर बैकग्राउंड वाले बच्चों से बात करेंगे एंड सिमिलरली गाइड करेंगे. अब बताओ और कोई क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा चमक वमक आ रहा है या फिर ऐसी बोर हो रहा है? क्या डुएबल है, आसान ईजी बनी है ऑल्सो यार. मतलब ये तो चलो एक से मैं मेंटोरशिप कर रहा हूँ, तुम इसी में जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई नोट्स बेचने, ये बेचने, वो बेचने, इनके थ्रू बेच लो, एक डायरेक्ट एक चैनल बना लो. सी a lot of things in life like in business life you will realize aren't a product of how good of a product that you build or how good of a brand that you start. They are a lot more to do about distribution कि तुम्हारी approach कहाँ है. Do you have enough channels of distribution where you can possibly create money or sell your products or upsell your products. ठीक है, a majority of it. I'm not saying कि अब like छोटी मोटी चीज़ें, I'm saying कि even if you look at big companies, a lot of companies have better products but they don't have the distribution. Distribution is prime कि तुम्हारी अप्रोच कितनी है, क्योंकि तुम जितना डिस्ट्रीब्यूशन उतना बढ़ा सकते हो, तुम अपनी रीच अप्रोच वगैरह जितनी बढ़ा सकते हो, तुम्हारा उतने odds बढ़ते रहते हैं कि हाँ X% of clients will sign up, say 10% or 20% people will sign up. So a person who can only reach like 20 people, 100 people versus a person who can reach 10,000 people, there is a significant delta. तो आई होप कि दिस थिंग वर्क्स आउट. अगेन 0 to 1 जर्नी. ठीक है, हमें अभी भी नहीं पता कि चलेगा कितना चलेगा नहीं चलेगा, फेल हो गए तो फेल हो गया, ज़्यादा डाउन साइड तो नहीं. अगर तुम्हें लग रहा है CV में CV का दिक्कत है, देखो CV इज़ नॉट द प्राइमरी एटलीस्ट फॉर मी, बट इफ़ यू वांटेड टू नो CV चल जाए, लाइक ऑल द प्रोजेक्ट्स विल बी CV वेटेबल, CV वेरीफाइड. तुम जाके किसी को बोल सकते हो, शक्ल दिखा. तो ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस सो दैट वी कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड. This project I have been part with my school and I have prepared some of the tests and told many of our juniors about CV and product. But this is very difficult to capitalize on. Yes. Because they don't give money for our advice. They think कि बढ़िया है, ये अच्छा बनाएंगे. तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ाएगा, तो वही काम है ना, वैल्यू प्रोपोजिशन जब तक तुम बढ़ाओगे नहीं. अगर मान लो कि मेंटोरशिप के नहीं दे रहा पैसे, तो तुम अपना डिलीवरेबल बढ़ा दो. अच्छा नहीं, मेंटोरशिप के साथ हम तुम्हें टेस्ट सीरीज देते हैं, क्लियर डेटा एस्टैब्लिश कर दो ना. देखो सेल्स का तरीका यही होता है, अगर कोई दूसरा बंदा नहीं चमक रहा तुमसे, डिलीवरेबल बढ़ा लो. नेगोशिएशन में यही चलता है. प्राइमरी इज ईदर यू नेगोशिएट ऑन द प्राइस और यू नेगोशिएट ऑन द डिलीवरेबल्स. तो अगर मान लो जैसे इफ यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस कि अच्छा बच्चे पैसे नहीं दे रहे, दो तीन चीज़ें और दे देंगे. हम ऐसे कर देंगे कि अच्छा नहीं, विल गिव यू एन ऑन कैंपस कोर्स, ठीक है, द बेस्ट परफॉर्मर और द बेस्ट कुछ भी एडटेक वगैरह जो भी होगा. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो पार्टनर विद अदर क्लाइंट्स लाइक ये फिजिक्स वाला भी अब ऑलरेडी इन टच कि भाई अच्छा ये बच्चे आ रहे हैं, इनका इंटेंट नहीं है इनको बेचना, कि हम तुम्हें एक्सेस दे रहे हैं, तुम बेचना चाहो तो क्रॉस सेल कर सकते हो. तो तरीके हैं. ठीक है, प्रॉब्लम्स तो चलो रहती हैं, इनहेरेंटली कोई भी चीज़ स्टार्ट करो उसमें 1000 प्रॉब्लम निकल जाएंगी, 1000 होल्स निकल जाएंगे जिसमें तुम कोप करते रहोगे कि अच्छा नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा. बट द थिंग इज व्हेन यू वंस यू गेट द बॉल रोलिंग एंड वंस यू हैव इनफ मोटिवेटेड पीपल इन्वॉल्वड इन good enough capacity for something, generally people tend to find solutions to the problems as well. ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन, एनी मोर डाउट्स, एनीथिंग एल्स? ना शिफ्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड.
ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने कहा हेलो, हाँ जी। सो रजत रीच्ड आउट टू अस, ठीक है, लाइक टू मी, एंड ही वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड। सॉरी, सो रजत इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईस्टर्न हिंदू 2018 बैच, जिसने हाउसेट बनाया। हाउसेट काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो हाउसेट लाइक द फर्स्ट एक्चुअल स्टार्टअप दैट इज लाइक ईसेल साउंड, वो रजत का ही। एंड दैट गाय इज इनसेन, मतलब जब इनने खींचा था, बहुत मेजर खींचा था, दे वर इन फोर्स, दे गॉट एक्वायर्ड एज वेल, एंड देन मतलब मेजर खींचा, ठीक है। आई डोंट वांट टू शेयर द स्टोरी बिकॉज दैट गाय विल बी कमिंग मोस्ट लाइकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस, लाइक नेक्स्ट वीक शायद वो आएगा along with us. So he's been working on this little thing and he wanted us for some help. Okay, I'll be vague on purpose. These are two questions that he wants us to answer. क्या एक बार पढ़ लो। समझ आया कुछ? These are two questions that he wants us to answer. If you feel that you want to work in this is very secretive, very selective. मतलब most likely if you none of you approach, I will approach you guys personally कि भाई इसमें काम करना है या फिर इसमें करना है, because this is अभी for now this is a primary focus for us. Answering these two primary fundamental questions. क्यों करना है वो अभी नहीं बता रहे, क्या करना है वो भी नहीं बता रहे. These two are the primary questions that we want to answer first. ठीक है, very important by the way. And also by the way that guy is insane. He is so fast in his thinking. मतलब है खींचा है, अच्छा लगा, गाना बनाया, थोड़ा चमका हुआ गाना, तो देख लो, इंटरेस्टिंग लगे तो बता देना। रीच आउट टू मी आफ्टर दिस मीटिंग, टेक्स्ट मी और व्हाटएवर, बट इफ यू वांट टू वर्क इन दिस जस्ट लेट मी नो, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टिकल्स एंड कोहॉर्ट्स, ठीक है। हमारी क्लासेस किस किस की है अभी? एक की है, ठीक है, फिर तो ठीक चल रहा है। तो वर्टिकल्स एंड कोहॉर्ट्स यार हम कर रहे थे, मतलब कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट वी फिगर्ड दैट वी वांट यू गाइस टू डिसाइड कि तुम्हें कैसे चलना है, मतलब बिकॉज द थिंग इज दैट हम चलाने के लिए चला देंगे, रेडी रखा है ऐसा रोड मैप्स वगैरह, ठीक है, बट टिल द टाइम दैट यू गाइस डोंट हैव ऑल योर हेड्स, ब्रेन्स एंड हैंड्स टुवर्ड्स वन थिंग, एंड तुम अगर 10 चीज़ें या 20 चीज़ें साथ साथ करते रहोगे, मोस्ट लाइकली यू गाइस वोंट बी एबल टू बिल्ड अ वेरी बेसलाइन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो तुम लोग बताओ कि हाउ डू यू वांट द वर्टिकल्स एंड कोहॉर्ट्स टू वर्क? डू यू वांट वन प्राइमरी वर्टिकल एंड वन सेकेंडरी वर्टिकल, और डू यू वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर अ लॉट? ये एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर की दिक्कत ये होती है कि लोग ना कुछ नहीं करते, एंड दे एंड अप डूइंग नथिंग, कि अच्छा ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, 10 चीज़ें कर लेंगे, एंड में कुछ नहीं होता, कोई बेसलाइन कॉम्पिटेंसी नहीं आती, सारा टाइम बर्बाद। तो इफ़ यू हैव एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, वी वांट वाई अमाउंट ऑफ आउटकम, ठीक है, क्वान्टिफाइबल आउटकम, कि भाई तुमने काम किया, तुमने यहाँ पे इंटर्नशिप खींची, तुमने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट किया, तुमने यहाँ पे स्टार्टअप किया, तुमने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग किया, बिकॉज वी गेव यू एक्सेस और गेव यू दैट एनवायरनमेंट where you were where you prospered. तो अब मेरे को ये बताओ, now this is an open floor, everyone can comment, everyone can speak. Tell me how do you want the verticals to go? Are you aware of the verticals by the way? पता है ना क्या क्या vertical है? वेंचर कैपिटल, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और कुछ था मार्केटिंग। ठीक है, क्या? हाँ वो है, ठीक है। अब बताओ, how do you want the verticals to function? Do you want a selective procedure that we only take a very few people for the verticals and bye-bye Tata, or just sideline the rest of them? Because the primary thing that we want is that तुम्हारा टाइम का एकदम बेस्ट यूटिलाइजेशन हो एंड वी एक्चुअली रीच सम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी। मतलब अगर तुम किसी वर्टिकल में जा रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई फंडिंग कैसे उठानी है, किससे उठानी है, कब उठानी है, तुम्हें नाम रटे होने चाहिए। हर फंड मैनेजर, तुम किसी भी फंड में उठा लो, जैसे अभी इवन अस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा इफ़ यू गो थ्रू द गाइड बाय द वे, इफ यू आर एबल टू फाइंड इट, there is a list of venture capital, there's a list of VCs, there's a list of funds that we interact with or are in touch with, ठीक है। हम सबके पास हर मेजर फर्म में एक एक POC रखा है, ठीक है, मतलब पीक 15 में एक बंदा है, एक्सेल में एक बंदा है, ठीक है, छोटे मोटे फंड्स में भी 1-2 बंदे हैं, एक्सेलरेटर्स में बंदे हैं, मतलब
एक कल्चर बनाने के लिए ना तुम्हारे पास अप्रोच होनी चाहिए, रीच होनी चाहिए, ठीक है। एंड दैट रीच कैन ओनली वर्क फॉर अ क्लब लाइक अस, फॉर सोसाइटी लाइक अस, इफ इट्स कंपाउंडेबल। तो अगर प्रॉब्लम हमारे में से लाइक सीनियर कोर में से कोई करके किसी ने छोड़ दी और तुमने जूनियर्स ने नहीं पकड़ा, तो देन दैट थिंग इज utterly useless. Then that all the knowledge access will be with that one or two people who might or might not be connected to the society in the future. So what it requires is, it requires you guys to take up initiative and you guys to develop a baseline level of understanding कि हाँ भाई इसमें इंटरेस्ट है, इसमें मेजर चीज़ है। इंटर्नशिप वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगी इफ़ यू आर फॉलोइंग द रिसोर्स प्रॉफ, यू आर डूइंग अ राइट स्टफ एंड बाकी नेटवर्क लगा रहे हो। एक और फैक्ट, देयर इज अ थिंग दैट वी आर वर्किंग इन विद इन ईसेल व्हिच इज बेसिकली गेटिंग पीपल देयर फर्स्ट इंटर्नशिप दैट आर वेरी हाई क्वालिटी, ठीक है। अभी इतना बना नहीं है, बट लेट्स से वी हैव 4-5 कंपनीज, अभी राइट नाउ वी डू हैव 4-5 कंपनीज which will readily hire anyone that we recommend, because we have built that connection with them, we have established that sort of a understanding with them कि यार देखो यहाँ पे लोग competent है, but जो experience है that is something that we can't solve for, you guys can, ठीक है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास बैंडविड्थ है, तुम्हारे पास पैसा है सॉल्व करने के लिए, हम नहीं कर सकते, सिंपल एस्टैब्लिश फैक्ट है, मतलब हम तुम्हें पैसा तो नहीं देते काम करने के, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। तो in an ideal world, ठीक है, the way I want society, in an ideal society I want कि once you guys once freshers drop into this society, we have such a huge collective network that भाई first internship ही अच्छी internship मिले and then they are able to compound, because पहली इंटर्नशिप लेते लेते ही लाइक एक फर्स्ट एक्चुअल अच्छा वर्क एक्सपीरियंस लेते लेते तुम्हारे 6-8 महीने वरना ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। द कॉमन टाइमलाइन इज कि भाई तुम पहले 2-3 महीने पहले एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, फिर तुम 2 महीने कहीं रैंडम जगह काम करोगे, यू फिगर आउट यू डोंट लाइक, देन यू विल रिटायर और यू विल हैव एग्जाम्स एंड देन व्हेन द सेकंड इंटर्नशिप हैपेंस देन इट विल बी प्रॉब्ली योर सेकंड ईयर एंड देन इट जस्ट goes on, like it's a very inefficient, a very I would call a boring process. तो आइडिया है कि फर्स्ट ईयर से ही बूस्ट करना है कि मतलब फर्स्ट ईयर से कंबाइंड एफर्ट लगा के, कंबाइंड बैंडविड्थ स्ट्रेंथ लगा के पहले ईयर से ही अच्छे बच्चों को एक जगह लगाओ। तो दिस इज विजन, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी है इन प्रोसेस है, बट डू यू गाइस अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आर वी गेटिंग, बिकॉज यार सोसाइटी का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, कुछ नहीं मैटर करता। any CV that you see, probably in any interview that I go to, I'll probably mention that I'm the president of ESL or whatever. It's always about what your interests are, what your experiences are, तुमने internship कहाँ पे ली है, ठीक है, तुमने क्या है, तुम्हारा टेक्निकल स्किल सेट क्या है, मतलब इतना ऐसा तुम सोचते होगे कि भाई सोसाइटी भाई इतना कुछ ही नहीं है, जेन्युइन बता रहा अच्छा होता है, ठीक है। लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव लेवरेज ESL into brand name insane areas, ठीक है, मतलब talking to a lot of venture capitalists मैंने leverage मारा है, just to get my first foot in the door मैंने leverage मारा है। If I'm talking to someone कि मेरे को incubator बनाना है, ठीक है, कि जैसे DU का एक combined incubator बनाना है, तो उसमें मैंने अपना ESL like president leverage किया है to talk to the presidents of other ESLs or the presidents or like people who are building products, तब मैंने अपना brand name leverage किया। तो leverage चलता है, ठीक है, हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हारे पास कोर पोजीशन होगी तो कोई फंडामेंटली तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं। तुम्हारी फंडामेंटली लाइफ चेंज तब होगी जब तुम्हारे पास एक कोर स्किल सेट है जिसको तुम कैपिटलाइज कर सकते हो एंड देन यू यूज दैट स्किल सेट एंड योर ओन नेटवर्क टू बी यूजफुल टू द सोसाइटी और द कॉलेज इन जनरल, ठीक है। दिस इज हाउ आई अप्रोच थिंग्स, नॉट नेसेसरली दैट यू हैव टू अप्रोच थिंग्स लाइक दिस, बट दिस इज समथिंग दैट हैज वर्कड फॉर मी। डज दैट मेक एनी सेंस? तो अब बताओ कैसे तुम्हें, हाउ डू यू वांट द वर्टिकल्स एंड कोहॉर्ट्स टू वर्क? वर्टिकल्स में पहले बात करते हैं। अभी के लिए मार्केटिंग, वेंचर कैपिटल, साइंस एंड टेक को प्राइमरी ले लो, और ऑपरेशन चलो आप रिसर्च, यस। तो बताओ किसको, मतलब कैसे तुमने सेटअप कैसे करना है, हाउ डू यू वांट द वर्टिकल्स टू फंक्शन? We can maybe volunteer. एक करके हाथ खड़ा करो, उसको कुछ बोलो। हाँ जी, लोग 2 चूज कर सकते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देन लेटर ऑन वी कैन डिसाइड ऑन वन जहाँ पे कंटिन्यू करना है। 2 प्राइमरी वर्टिकल चूज करके एक्सपेरिमेंट करके एक पे टेक किया। हाँ ठीक है, चल जाएगा कुछ। और कोई आइडिया? और कोई आइडिया, कोई इनपुट? एक को यहाँ प्राइमरी रखें, दूसरे को सेकेंडरी रखें।
एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। और देखो हम इतनी अच्छी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं यार, हम तुमसे पूछ रहे हैं, हम ऐसे नहीं यूनिलैटरली डिसीजन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बताओ ना। थोड़ा सा ऐसा सोचो, दिमाग को सोचो। प्राइमरी सेकेंडरी वाले में हम लोग ये कर सकते हैं कि किसी को फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उसने मार्केटिंग में ले लिया, साथ में उसको रिसर्च में भी थोड़ा बहुत सीखने उठने का मन है, मार्केटिंग का वो मेजर काम कर रहा है, जिस बंदे ने रिसर्च को मेनली लिया है, कभी उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको लोगों की ज़रूरत है, तब वो और लोगों को बाकी वर्टिकल से ले ले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सीखने को भी मिल जाएगा और एक मतलब आप समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ, दैट वी कैन डू। ठीक है, और कोई इनपुट, एनीथिंग एल्स दैट यू फील इज मोर वर्थवाइल? एक और आइडिया है मेरे पास कि यू टेक अ वीक, यू गो थ्रू द रिसोर्सेज एंड देन यू फिगर आउट व्हाट यू वांट, बट एक प्राइमरी वर्ड, दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी कैन डू। भाई तुमने मार्केटिंग का कंटेंट देख लिया, तुमने वेंचर कैपिटल देख लिया, तुम 10-15 चीज़ें देखी एंड देन यू फिगर आउट कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी कैन एक्सप्लोर। बट देखो यार, सोसाइटी इफेक्टिवली इज 2 years, टू भी नहीं कहूँगा, लास्ट ईयर ही शुरू करी, ठीक है, इफेक्टिव, क्योंकि उससे पहले तो गन, मतलब उससे पहले कुछ ही नहीं था, एकदम स्क्रैच से फिर से शुरू करी है। सो ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द एक्टिविटीज दैट वी आर मेकिंग राइट नाउ विल सपोजिटली लास्ट फॉर द फ्यूचर एज वेल, कि एक बार करके डिसाइड करके सेट कर लिया कि भाई हाँ ऐसे काम होना है, तो इसको ही कंटिन्यू करो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू आइटरेट रीआइटरेट एवरी ईयर, एक कंसिस्टेंसी चाहिए हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। एंड वी आर लाइक 50-60 मेंबर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक है नहीं, वो अलग बात है, बट एक ना सिस्टम्स होने चाहिए किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। देयर शुड बी सिस्टम्स दैट एग्जिस्ट, ये मतलब अच्छे, क्लीन, वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट, सो दैट पीपल आर इन टच। अब बताओ क्या करना है, एक वोट डाल दो यार, वोट डालते हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी लिख दे, एक 2 वर्टिकल्स लिख दे, और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सिंगल प्राइम, क्या? एक ही सिर्फ एक प्राइमरी, 1 वर्टिकल, प्राइमरी सेकेंडरी, 2 वर्टिकल्स, ठीक है। वोट कर दो अभी, उसके बाद शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट। रिसर्च वर्टिकल में काम क्या होगा? रिसर्च वर्टिकल यार थोड़ा ना आर्टिकल ड्रिवन, रिसर्च ड्रिवन ज़्यादा है, मतलब अभी के लिए जो हम सोच रहे थे, सो आई डोंट नो किसके साथ डिस्कशन हुई, रिसर्च में। हाँ, तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज, जैसे रिपोर्ट्स होती है ना, स्टैटिस्टा पता है, स्टैटिस्टा यू लर्न स्टैटिस्टा, मुझे हाँ, और किसको पता है स्टैटिस्टा? पता है, अगर तुम कभी इनसे डेटा लेने जाओ, इफ़ यू आस्क देम टू सेल लाइक डेटा, लाइक द रिपोर्ट्स, वो एक तुम्हें एक ऐसे चार्ट वार्ट दे देंगे, वो फिर मिल जाएगा, जो एक्चुअल डेटा वगैरह होता है, विल सेल इट फॉर 20, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम $2,000, $2,000? yes, $3,000, very specific industries it starts from $3,000. So what we want to do at research vertical is we want to create such insane reports and data, like collect such interesting insights that we are able to sell it, कि इंक 42 को भेज दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया को भेज दिया, जो भी तुम ऐसे रिपोर्ट वगैरह देखते, बच्चे ही कंपाइल करते हैं यार, इंटर्न्स को लगाते हैं ये काम करने के लिए। और तो मतलब पहले मैंने रिसर्च स्टैटिस्टिकल रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन, द वन दैट वर लाइक अवेलेबल एज अ सैंपल ऑफ फ्री, उनकी जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह देते हैं, अटेंडेड डेटा सोर्सेज एंड सो ऑन, तो लाइक काफी सोफिस्टिकेटेड और काफी रिजल्ट स्ट्रक्चर्ड है, जो उनकी रिपोर्टिंग क्वालिटी थी वो काफी टॉप नॉच होती थी। एंड इफ वी हैव टू मूव इन द सेम वर्टिकल, we have to create something of that same quality, but the fact that we are also competing with like 180, 580, so we can also create the quality reports, and we have like more societies or door-to-door consulting companies, so we will be targeting that as well. So I suppose maybe we should take expertise in one segment and use that segment to leverage industry connections, and then maybe we would be able to sell or scale it to next business. I remember the last time I interacted with somebody from Taiwan, semiconductor manufacturing company, TSMC. They also used to like take on analyst research reports. So maybe I could have some analysts from GS or JPL. I'm sure if you have a so we can leverage those connections to actually put in the word, or we can see how we can leverage them actually. कर सकते हैं, देखो एक दो है मेरे दिमाग में
which are very like research oriented projects that may or may not give us a lot of money. But वही है ना एक competency देखो the thing is कि जो हम करते हैं ना ये cohort vertical वगैरह these are actual edtech challenges. अगर तुमने कभी बाहर में देखा हो या कुछ पढ़ा हो, upskilling 50 people together is a huge challenge. Even for schooling systems, for colleges, for higher education systems. But लोगों को entrepreneurial बनाना तो अभी तक किसी ने solve ही नहीं किया, पहुँचे ही नहीं है. MBA colleges, IIMs, ISBs aren't able to make people entrepreneurial. ठीक है? तो जो हम कर रहे हैं ना बहुत fundamentally अलग है and we expect you guys to be थोड़ा चमको, मतलब खुद की मेहनत दिखाओ. Because it is required. मतलब when I sit for interviews or I talk to people, normally I tend to stand out. कि हाँ यार इसने कुछ किया है. It's all due to the experience, like entrepreneurial experience that I've had. क्योंकि भाई आप देखो इतना industries के बारे में पता रहता है, because I do it naturally. And I started in my first year. When I started my first businesses, I was doing it from scratch. Like कुछ नहीं आता था भाई. मैं बस ऐसी fun में कर रहा था. कोई sophistication नहीं, no understanding of business, no understanding of what revenues are. Revenue भी मेरे को बस पता था पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, that's it. Profit हो रहा है, loss हो रहा है, that's it. ठीक है, buy and sell. ये था मेरा first business. कुछ नहीं पता था. But time लगता है, हो जाता है. तो अगर करने के लिए बैठे तो हो जाता है. So that is what we expect you guys to do as well. So I think कि जो research segment है उसको कैसे चमकाया जा सकता है. So I feel like see we have verticals from venture capital to research, right? Where we can create teams. Like I remember when I first started researching about markets or when I worked in private equity. So like they have a very specific segment, just say utility or manufacturing and so on. So मतलब we can either create teams or like individually we can like chop down the whole sector and discuss that with our mentors or partners, and then that is how we can actually get successful or insightful in one sector, and we can use that to actually become competent. क्योंकि जो अगर competence scale करनी है, this is the perfect time. देखो यार 50 बंदे हो, मतलब even if a lot of you guys have other responsibilities वगैरह तब भी यार critical mass है यार, तो करो ना, यूज़ करो. मतलब इतना कल है कंबाइन, इतना एफर्ट वगैरह डाल सकते हो तो यूज़ इट वेरी सिंपली, लाइक वेरी फंडामेंटली. तो दैट इज लाइक वेरी मच इट. तो वॉच का फिर सेम है, हमें टेक वॉच शुरू करना था. टू स्टार्ट अ टेक कल्चर फ्रॉम डी कि लोगों को आता ही नहीं है टेक्नोलॉजी, बट वो करेंगे. लेट्स डू इट लेटर. लेट्स फिगर आउट अ वे. A few of you guys are interested in technology, like truly want to code, truly want to build like applications, products, websites वगैरह. It's a very different world and it's a very nice world, I must say, because इतना अंधा पैसा है टेक्नोलॉजी में जितना देखा कहीं नहीं. मतलब ब्यूटीफुल वर्ल्ड. ठीक है, टेक्नोलॉजी इज आर्ट, वेरी गुड. तो हाँ यही था. दिस इज लाइक प्रीटी मच इट फॉर द प्रेजेंटेशन. एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी एंडिंग क्वेश्चंस तो बताओ, फिर रैप अप करते हैं. जैसे रिसर्च फ्रेमवर्क्स होते हैं, राइट, Deloitte वगैरह, we can use those frameworks to actually teach people how to be competent. Because if we just get them on to research or learn more about a particular industry, that would be kind of a big step. So we can actually figure out something. पहले तो सबसे पहले फंडामेंटल है, तुम गाइड के अंदर जाओ, तो जितने भी रिसोर्सेज वगैरह नोशन टॉक है, रिपोजिटरी को चार्ट करो. मतलब उसमें इतना अच्छा कंटेंट है कि भाई तुम्हें आइडियली तो बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. स्पेशली नेटवर्किंग, इंटर्नशिप्स वगैरह, मतलब ये डेटा कोई देगा नहीं तुम्हें अनलेस तुम्हारा कोई ऐसा सीनियर है जिसको पता है चीज़ों के बारे में. मतलब नहीं मिलता, ये मिलता नहीं. अगर मेरे को मिल जाता मेरा भला होता. ठीक है, तो यूज़ कर लो. फ्रेमवर्क्स वगैरह, येस यू राइट, लाइक एवरी वर्टिकल नीड्स इट्स ओन फ्रेमवर्क. वेंचर कैपिटल का तो रेडी है. देखो वेंचर कैपिटल हैज अ वेरी हाई बार ऑफ एंट्री. यू नीड फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस फर्स्ट, you need a fair understanding of business second, then you can expect, and also you need a good brand value actually. But है तो इन लोगों के वो है वो given. So cracking into venture capital is inherently a bit harder than something like consulting or something like starting a startup. Like venture capital तो वो after Bain, McKinsey, BCG 3-4 साल करके उसके बाद वो as a venture capitalist, fund manager, analyst वगैरह ज्वाइन करते हैं. तो हार्ड है इंडस्ट्री, मतलब हार्ड बार, लाइक हाई बार ऑफ एंट्री है. हार्ड तो नहीं कहूँगा,
एक बार तुम घुस जाओ तो भाई उससे चिल लाइफ किसी की नहीं है। मतलब पता है जितने VC से मेरी बात हुई उनका काम क्या होता है, फाउंडर आएगा, फाउंडर को जज करो, उसके साथ खाना खाने जाओ, मीटिंग करने जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे एनालिसिस वगैरह कर दो, खुद नहीं करना तो इंटर्न को लगा दो, फाइनेंशियल थोड़ा ड्यू डिलिजेंस वगैरह कर दो, ट्रिप्स पे चले जाओ। ये सारी लाइफ है मतलब एक VC की। इट्स अ वेरी कुशनी लाइफ। मतलब आफ्टर अ पर्सन इज डन विद वो क्या कहते हैं कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह, वो चिल करने के लिए पर तब भी इज्जत रखने के लिए VC बनता है। बिकॉज है ऐसा। इफ यू स्टार्ट योर फंड लाइक अगर तुम जैसे खुद का कोई ऐसे फंड शुरू करते हो तो यू गेट मैनेजमेंट फी। आई डोंट नो कितना परसेंट होता है, नॉट सॉरी 2% से 3%. अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 2.5. हाँ, तो मतलब अगर तूने 4 मिलियन रेज किया, ठीक है, एज अ फंड मतलब इन्वेस्ट करने के लिए रेज किया, यू विल टेक 2%, 3%, जितना भी है 8% ना, 2-8%। लेकिन उसमें जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है दैट इज लाइक 2% मैनेजमेंट फी और 2% 20% हाँ, वेरिएबल बोनसेस वगैरह। वेरी वेरी कुशनी लाइफ। तभी आप भाई हिंदू के बच्चे नहीं, मतलब VC स्पेस में है नहीं। मेरे को एक बंदा मिला मेट्रिक्स पार्टनर्स का जो है लिंक्डइन पे, बट बाकी तो आई डिडंट सी अ लॉट ऑफ हिंदू एंटरप्रेन्योर्स गेटिंग इनटू वेंचर कैपिटल और हिंदू पीपल को यार नहीं ऐसा नहीं। SRCG के बच्चे भर रखे हैं VC स्पेस में। है इतना पहुंचा SRCC वाले कंसल्टिंग में इवन और बट द फैक्ट इज कि जैसे हिंदू के भी बच्चे जैसे तुम्हारी जो जॉब वगैरह लगेंगे, तुम जाओगे ना प्राइवेट इक्विटी वगैरह वेन वगैरह उठा के लेके जाएंगे। सो व्हेन वंस यू गेट इनटू प्राइवेट इक्विटी इट्स कंसिडर लाइक इफ यू हैव द टेस्ट फॉर वेंचर कैपिटल इट वुड बी नाइस इफ यू गेट इनटू वेंचर कैपिटल लाइक एज अ प्रोफाइल और सो ये बता रहा हूँ कि सर्टन थिंग्स लाइक व्हाट वी आर टेलिंग यू दीस थिंग्स आरंट अवेलेबल एवरीवेयर। मतलब ये हमें पता है और हम बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है और हम बता सकते हैं, तो कर मतलब इम्पॉर्टेंट। Any more questions before we wrap? कितना टाइम चाहिए? कुछ आसान ले ले यार, एक लाइन फीचर्स तो देखो यार, अगर तुम सोसाइटीज के लिए तो परमानेंट ये कहते हैं कि ना देख लेना तो सोसाइटी को जाओ बहुत सारी बात हॉबी हम चुने है। बात ऐसी है ना, मतलब जैसे समझो जिसको रिस्क लेना आता है, मतलब जिसको पता है उसको रिस्क लेना है ना, उसको बताना नहीं पड़ता। तो एनीथिंग फंडामेंटली इज अ रिस्क। अगर तुम आगे क्लास मिस कर रहे हो, छक मार रहे हो, इट इज ऑल्सो अ रिस्क। बट जिसको लेना है उसको बताना नहीं पड़ता, जिसका इंटेंट है, जिसका बायस टू एक्शन, उसको नहीं बोलना। तो आई थिंक उसके हिसाब से देखो प्रायोरिटाइज करूँगा मैं, कुछ ऐसे बोल के बाकी नहीं बट एनी मोर क्वेश्चंस बिफोर खत्म करते हैं इसको? Who else? None? Anyone on that side? चलो ठीक है फिर। गुड वर्क गाइस। सबसे पहले ग्रेट फ्रेशर्स, लाइक अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली कोई पीटी वगैरह कोई कुछ नहीं हुआ, कोई सीन नहीं हुआ, मेरी हैप्पी। अच्छी नहीं चलेगी, सब कुछ थे, किसी ने उल्टियाँ करी डाला, तो ठीक है। दैट्स इट फॉर द मीटिंग टुडे। विल रोल आउट द फॉर्म एज वेल।